A very good afternoon to all. Welcome you today's panel discussion on yoga and mental health. As we all know, mental health refers to cognitive, behavioral, and emotional well-being. It is all about how we think, feel, and behave. Mental health can affect daily living, relationships, and physical health. Many people have mental health concerns from time to time. But a mental health concern becomes a mental illness when ongoing signs and symptoms cause frequent stress and affect our ability to function. Mental illness include depression, anxiety disorders, schizophrenia, eating disorders, and addictive behaviors. By the end of 2020, WHO predicts that the depression will be the second largest contributor to the global disease burden after ischemic heart disease. Anxiety is also being diagnosed at a higher rate than it was in the past. Despite these increases in diagnosis, treatment regimen typically include pharmaceutical therapies that are not sufficient to prevent further illness or promote mental well-being. Effectively addressing mental health concerns entails a comprehensive approach that addresses the root of the problems. Yoga is a spiritual discipline dating back to 5,000 years in the history of Indian philosophy. Its purpose mainly to unleash spiritual and mental powers of an individual. However, in recent times, yoga has been extremely popular in the context of fighting stress, anxiety, and depression in these times of our super fast lifestyles. This age old practices of yoga, which focuses on breathing, flexibility, and strength to boost mental and physical well being, has the significant evidence of the broad ranging benefits of yoga, both as a treatment and as a preventive form of medicine and healthcare. The International Yoga Day, celebrated every year on June 21st, helps in accentuating the usefulness of yoga for global health and fitness, which has gained a new paradigm in current COVID situation. The sixth edition of International Yoga Day this year is focusing on yoga at home and yoga with family. On this occasion, Vigyan Prasad is organizing a panel discussion on yoga and mental health. Today, we have with us two eminent speakers who are going to speak on the topic and interact with you. The experts in our panel are Dr. Mrityunjay Rathore. He is an associate professor in All India Institute of Medical Sciences, Raipur. He is also a certified yoga teacher and member of Yoga Wellness Committee of AIMS, Raipur. Besides his medical practice, he is actively involved in teaching and training of yoga past 10 years. Dr. Rathore is engaged in propagating and explaining the scientific aspects of yoga with special reference to functional anatomy. He has many research publications to his account, and many of them are related to yoga and anatomy. Welcome, Dr. Mrityunjay Rathore, to our program. Our next speaker is Dr. Arish Lata. She is the state coordinator of Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, S. Vyasa University, Bengaluru. She is the board member of Indian Yoga Association, Delhi. She is also the member of Board of Study in Dr. Ambedkar University. Dr. Lata has written books on yoga and diabetes, multiple sclerosis, and education. She is also the editor of a monthly magazine of Vyasa, Madhu Yoga. I have a request for the audiences and the participants today. They can ask any questions in the chat and comment boxes, which will be compiled and taken in the later part of the discussion. Please hashtag yoga and mental health before typing your question so that we can take it forward. In today's panel discussion, we'll discuss about yoga and mental health. Dr. Rathore, I have my first question to you. People sometimes use the term mental health to mean the absence of mental disorder. Factors in people's lives, interpersonal connections, and physical factors can all contribute to mental health disruptions. Conditions such as stress, depression, and anxiety can all affect mental health and disrupt a person's routine. So my question to you is, sir, what are the most common types of mental disorders and how to identify
one is mentally unwell. What are the early signs and symptoms of mental health disruptions? Over to Dr. Rathore. First of all, I would like to thanks the Madam Thank you. Bigyan Prasad for inviting me for this panel discussion. We all know that this is a time of COVID-19 crisis, and most of all here we are having a problem with the psychosomatic illness or the mental illness. So can we show some slide? Then we will able to more understand about that. The what is the please slide? Yes, we will just share the slide for you. Hello, is the slide visible to all? So, Thank you. yeah. So it's we are talking about the mental illness. So as we all know that nowadays the what is the mental illness and what are the important early sign. So mental illness, it having three important components. As you have to see the slide, the first is a mood, and second is thinking, and third is the behavior. So if we are talking about the any mental illness, so these three is the very important components, and that the either the problem with these thinking disorders or the behavioral or the emotional problem or the mood disorder that include is called the mental health disorders. So there's a refer to the wide range of the mental health conditions disorder that affect the mind's thinking and the behavior. So we have some example like depression, anxiety disorder, schizophrenia, eating disorder, addictive behavior. So these are the different type of mental disorder. Now we'll talk about this. What are the neural mechanism of a mental disorder or the stress problems? So if you see that the particular there is a stress, they are mainly act on the two circuits. The one circuit is called the hypothalamo pituitary adrenal axis, while the second is called the sympathoadrenal axis. So these two axis is very, very important. So when because of due to the stress, this axis is not work properly. So what the effects if the axis is not work properly? So there are the release of inadequate amount of the various catecholamines and cortisols, and these catecholamines and the cortisols are the responsible for the various symptoms related to the stress, so which can be classified as a mental, physical, emotional, and behavior. So we here see that these physical symptoms and the mental symptoms and behavioral symptoms as well as the emotional symptoms. First, we talk about the physical symptoms. So let's discuss about what is the physical symptoms. Can change the slide? Physical symptoms. Yes. Can you? Yes. So this the physical symptoms is very, very important. If you have a problem with the sleep pattern changes, or if you have a problem with the fatigue, or you have a problem with the digestive system changes, or the headaches, or infections, and the palpitation, and the most commonly we have to see observe that the persons they having a problem with the stress. So that having a problem with the tingling of the hands and the feet and the sweating, trembling. So these are the very earliest findings, physical findings in the case of the stress. So we should know that if such kind of things is happening on our body, we should very cautiously. And now we talk about the other symptoms. Can you another side? So we understand more symptoms, mental symptoms. Can you change the slide, please? So this is the physical symptoms. Now we talk about the mental symptoms. So as
we are know the most of the persons the problem with the lack of concentrations. So this lack of concentration is a very very important mental problems. And second is the memory lapse. इसमें क्या है, कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ जाता हूँ, सामान लेने जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो this is again the very very important symptoms. And another mental symptom, difficulty in the making decisions. So another important thing is that confusion हो जाता है उसको बार बार. And these orientations, they are also not orientation about the place and the various spaces. And now the most important is the panic attacks. Panic attack. Sometimes what happens, the persons, they are not able to cope up with the situations. Now these are the mental problem. Now the behavioral symptoms, आपने देखा है कि आज की तारीख में लोगों को the eating disorders हो जाते हैं. कई बार देखा गया कि लोग they are doing this increased smoking problem and also the intake of alcohol. So this all the addictive behavior are due to the problem with the stress or their behavioral symptoms. So, and also they are feeling the nail bitings when they are having a stress problem. So these are some behavioral symptoms of the stress. So that's the all the things we should know, that the either the person having a problem with the physical symptoms or the mental symptoms or the behavioral symptoms. So they can understand more better if they realize that the such type of symptoms they are suffering. So they can very cautiously and they try to do the some kind of the program or the any kind of therapy. Otherwise they can lead to the anxiety neurosis or the depressions, or in a better way if they are the thought disorder like a obsessive compulsive disorder. These are all things happening day by day. So it is very very important to understand the early signs regarding this all the stress symptoms which are because of happening because of the inadequate or dysynchronized activity of this particular this hypothalamic pituitary adrenal axis and the sympathothalamic axis. So now the emotional problem, I told earlier to you that sometimes the boat of depression, कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि आप उदास बैठे हुए हैं, और कभी कभी आप एक्सेसिव मतलब रेंज में आ जाते हैं, tearfulness हो जाता है. तो this is the uncontrolled emotional problem. So this all the things are related with this stress problem. So we should identify this all the feature as soon as possible. And after the identification of the early symptoms, if we are working with this early symptom, definitely I am sure we will not suffer from the very problem like a depression or the anxiety neurosis. So that's the early symptoms and the signs regarding this stress problem are the things. So this is the problem here. We will talk about the early symptoms of the mental illness. So can Yeah. So, sir, now I would like to ask you that how a common man who feels that he is mentally unwell can deal with it, and how is mental illness diagnosed? the mental illness are diagnosed by these all the symptoms which are related with that, either the physical symptoms or the mental symptoms. Most of the times they are telling about that we are not cope up with this modern whatever the situations which are going on in surrounding. So such thing is happening here. So we can understand that these are some problems where we have to be cope up with the situations. And if we are not able to these things, maybe the problem with that the symptoms is very very hectic and all the things. Yes. How does a person who feels that I'm sad, unhappy, I'm undergoing stress and anxiety, how he or she would like to, what will be his first step? What will be her first step? How does he approach to a doctor or to even within the family members? If somebody is feeling mentally unwell, how does he or she deal with it, sir? If you can say something about that. Yes, definitely. Suppose as I understand this particular stress problem or the any kind of the psychiatric disorder, the first thing is that the express your emotions, whatever on your minds, you will try to express your emotions to your colleagues,
your friends, your family members. And if we are not able to that, the other persons or the other colleagues or the family member, they supports their emotions. So the expression of the emotion is the very, very important things, as I understand. ओके सर, हम अब डॉक्टर लता से योग एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग का दशकों से भावनात्मक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से इन निष्कर्षों का प्रमाणित करने में बल मिला है। अभी तक ज्ञात हुए परिणामों से ये निष्कर्ष निकलता है कि योग के लाभ रोगों को रोकने एवं उन्हें ठीक करने में मदद करता है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, योग हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास में कैसे मदद करता है और योग शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टर आरिश लता जी। नमस्कार। मुझे सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आज आपको हम लोगों को एक साथ यहाँ पर आपने आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। आपके विज्ञान प्रसार की सारी टीम को थैंक्स। और आज का जो टॉपिक है बहुत आज के लिए बहुत ज़रूरी भी था। जो जैसी आपकी कोविड की अभी कंडीशन चल रही है, पूरे देश की कंडीशन चल रही है, तो टॉपिक आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया, इसके लिए मैं भी उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी। ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि जैसे डॉक्टर राठौर साहब बता रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मेंटल हेल्थ को लेकर आ रही है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में 26 करोड़ लोग मेंटल इलनेस में के मतलब शिकार हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, और जिसमें कम से कम 20 करोड़ तो इंडियंस हैं। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ अभी भी सारी बीमारियों को काउंट किया जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ को अभी तक बीमारी जैसा बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं गया। उसको बहुत सारे कारणों में डाल दिया जाता है, लेकिन उसको बीमारी के तौर पे नहीं लिया जाता, जिसके कारण लगभग 8 लाख लोग, मैं एक आंकड़े उसमें बताना ही चाहूँगी कि लगभग इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिसके कारण पूरे देश को वर्ल्ड लेवल पर बताते हैं कि 75 लाख लोगों का लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो वर्ल्ड लेवल पे इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आज बताने में भी खुशी हो रही है कि ये योग जो विधा है वो इतनी हमारे सनातन धर्म से आई हुई है। उपनिषदों में इसका वर्णन था। अगर माननीय मोदी जी ने इसको अगर यूएन के पोर्टल पे नहीं रखा होता और आज उसको स्वीकार नहीं किया होता, तो एक सिंपल वे ऑफ लाइफ जिससे आदमी अपना जीवन सुधार सकता है, जी सकता है, वो रास्ता लोगों को नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इससे पहले हमारा योग जो है ना बिल्कुल अनाथ की स्थिति में था, कि वो संपन्न है लेकिन लोग उसको समझते नहीं थे। तो आज उसकी आप महत्व देख रहे हैं और अब तो वर्ल्ड देख रहा है उस चीज़ को। तो योग का जो आपका जो प्रश्न था कि कैसे योग अपने मन पर और शारीरिक उसका स्वास्थ्य लाभ लोगों के शरीर पे, मन पे पड़ता है, तो यहाँ एक छोटे छोटे शब्दों में आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं तो लोग शब्दों में उलझ जाते हैं, बात नहीं समझ पाते। तो योग है जो एक सिंपल डेफिनेशन जो दी जाती है कि जोड़ना, युज, योग माने जोड़ना कहा जाता है, लेकिन किससे जोड़ना? तो एक शरीर, मन और परमात्मा, आत्मा परमात्मा और शरीर का जो संयुक्त समन्वय होता है वो योग कहलाता है। इसके बगैर अगर इसका संयुक्तिकरण ना हो तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम उसको धारण नहीं कर सकते। तो आज जो मानसिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि मन क्या है, मन की जो अवस्था है उसमें योग अपना कैसे प्रभाव डालता है। ये पतंजलि योग सूत्र जो इसके हम जनक कहते हैं, उसमें पहली समाधि पाद में पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासन, यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करो।
आज के समय में जो समस्याएं आप देख रहे हैं कि किसी की भी लाइफ सेटल नहीं है, ना उनके उठने का, सोने का, खाने का, किसी भी चीज का टाइम सेटल नहीं है। लेकिन योग में अनुशासन सबसे पहले आता है। अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता। उसी में दूसरा एक अगला जो श्लोक है, चित्त वृत्ति निरोधा जो आता है, उसमें चित्त की वृत्ति को निरोध करना, यानी कि जो मन में इतने विचार आ रहे हैं उनको कैसे हम संतुलित करें, कैसे उनको कंट्रोल करें, इस चीज को सबसे पहले बताया गया है। तो इन स्थितियों को पाने के लिए, लाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो योग के अभ्यास पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला हमारे अष्टांग योग में यम और नियम का पालन है। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यम और नियम कहाँ कहाँ आते हैं। तो ये आप इस चीज को आप देखिएगा कि आपको भी पता चलेगा कि लोग कहते हैं, ये कहावत में है कि हम तो बहुत सालों से योग कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिलता। तो कारण वही है, क्योंकि जो अनुशासन वाली बात आती है वो यम और नियम में ही आती है। तो जब हम यम और नियम, यम क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि सत्य बोलना मतलब अपने आप में सच्चा बनना, अहिंसा, किसी भी नुकसान को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अस्ते, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ये ऐसे 5 पार्ट हैं जिनको जीवन में, अपने जीवन में पहले धारण करना पड़ता है। उसके बाद नियम आते हैं। नियम में शारीरिक शुद्धि आ जाती है, आपकी ईश्वर से आपका साक्षात्कार आता है, तप आता है, संतोष, एक सेटिस्फेक्शन रखना, ये आता है। तो ये सारी चीजें जब नहीं इंसान में होती हैं तो वो योग कैसे कर सकता है? तब वो योग क्या कहलाता है? शारीरिक एक्सरसाइज कहलाती है कि आपने फिजिकल एक एक्सरसाइज कर ली लेकिन उसका कनेक्शन मन से कहीं अटैच हुआ ही नहीं, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज में काउंट होके रह जाता है, उसको योग करना नहीं कहते हैं। तो योग क्या है और उसका प्रभाव कैसे है? तो योग का जब हम नियमित अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो धीरे 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 शरीर की सारी वृत्तियों को शांत करता जाता है। किस तरह से शांत करता है? नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं, मन को बांधने की कोशिश करते हैं, बहुत विचार आते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बात, प्रैक्टिस के लिए तैयार होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप प्रैक्टिस के लिए तैयार होंगे और बार बार कंट्रोल करेंगे, नहीं नहीं मुझे आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है, नहीं नहीं मुझे ये आसन को कम से कम 1 मिनट और ट्राई करना है, तो ये अनुशासन और अभ्यास आता है। तो जब आप उसमें जाएंगे तो धीरे 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 बॉडी और मन दोनों पे नियंत्रण शुरू हो जाता है। तो जब इस तरह से हम अभ्यास में जाते हैं तो उसका सीधी सी बात है कि शरीर के मन पर, शरीर पर उसका असर हमें दिखाई देने लगता है, जो बहुत पॉजिटिव होता है और वो मन की स्थिति को भी नियंत्रण करने के लिए भी बहुत मदद साबित होता है। जैसे आपने बताया, यम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, उसकी तैयारी भी चाहिए और मन को शांत रखने का भी मन बहुत इंपॉर्टेंट है, मन बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन मन को शांत रखने का अभ्यास है। ध्यान, पॉजिटिव मेंटल वेलबींग शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है एवं फलदायी रूप से काम करते हुए समाज में अपना योगदान कर सकता है। योग और ध्यान स्वास्थ्य एवं बीमार लोगों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक समीक्षा अध्ययन, एक रिव्यू स्टडी के अनुसार योग विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता जैसे तनाव, स्ट्रेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मनोदशा स्थिति, हृदय गति परिवर्तनशीलता, पल्मोनरी फंक्शन इत्यादि में व्यायाम की तुलना में बराबर अथवा उससे भी बेहतर है। मैं आपसे ये प्रश्न मेरे आपसे ये प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य पर योग और ध्यान कैसे काम करता है? मानसिक स्वास्थ्य पर जब हमारा इसमें एक अभ्यास का एक जो श्लोक 12 उसमें पतंजलि सूत्र में है कि जब हम अभ्यास, नियमित अभ्यास करते हैं तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई तालाब है, पॉन्ड है, तो आप देखिए उसमें अगर आप पत्थर डालेंगे तो उसमें वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं।
लेकिन वो धीरे 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 करके शांत होती है, तो आपको वो नीचे तक का उसका दृश्य आपको दिखाई देने लगता है। तो योग अभ्यास भी कुछ इसी तरह से है कि जब हमें बार बार वो जो तरंगे हैं वो हमारी मन की तरंगे हैं, वो बार बार हमें भटकाती हैं, हमें अलग अलग डायरेक्शन में ले जाती हैं। मन की स्थिति जो है वो बड़ी ही कठिन है। मन के बारे में मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी कि मन की जो व्याख्या है वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत अलग अलग तरीके से दी है, जिसको समझ पाना और बताना भी शब्दों में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि मन ऐसी स्थिति है जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन से ही आप अभी यहाँ बैठे हैं और एक क्षण में आप कहीं और हो सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइम पर रिएक्शन जो देना होता है वो मन की अवस्था पे होता है। अब मन की अवस्थाएं कैसे बने, मन को कैसे आपको डाइवर्ट करना है, ये सब कुछ योग के अभ्यास में आता है। आपको बताना चाहूंगी कि मन जो है, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सात्विक होती है, एक राजसिक होती है, एक तामसिक होती है। आज पूरा जो विश्व है तामसिक अवस्था से गुजर रहा है। हर तरफ परेशानियां, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, मानसिक अवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो तम में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही थका हुआ, चिंता में पड़ा हुआ, अपने आप, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, वो तम की अवस्था होती है। कहते हैं कलयुग की अवस्था भी तम की अवस्था है जो आज के समय में चल रही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो होते हैं, जो कहते हैं ना कोरोना योद्धा एक नाम है, आप सुन ही रहे हैं, कि उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं, निकलते हैं, काम करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, अपना संकल्प लेते हैं, और चाहे वो भले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेते हो पर करते हैं। तो वो एक राजसिक प्रवृत्ति होती है कि उद्यम करना मीन्स कुछ प्रयास करना, कुछ कोशिश करना। और जो इन सब चीजों से थोड़ा और ऊपर उठ जाते हैं, उनको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जब यहाँ की स्थिति में व्यक्ति जब पहुंचता है तो वो मन की सात्विक स्थिति कहलाती है। तो इन तीनों स्थितियों में मन भ्रमण करता है हर इंसान का। अब वो कौन सी वृत्ति है, वो कब इस वृत्ति में पहुंचेगा, वो उसका पूरा, अगर हम कहें कि जो क्रेडिट है वो योग को जाता है। योग का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, मैं आगे कुछ आपको अभ्यास भी इसमें बताऊंगी, क्योंकि बिना उसके अभ्यास के आप उन योग की उन स्थितियों को नहीं समझ सकते। तो मन की और स्थितियां हैं जो हम मन कहते हैं, उसको और भी नामों से बोला जाता है। चित्त है, वृत्ति है, अहंकार है, बुद्धि है, ये भी मन की ही स्थितियां हैं। तो वो मन एक मन भटकता हुआ मन है। जब उसमें कुछ थोड़ा इनपुट हो जाता है, समझ होती है, वृत्ति विचार उठने लगते हैं, तो वृत्ति कहलाती है। और फिर जब चित्त जब होता है, जब एक अलर्ट करता है दिमाग को, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा एक अलर्टनेस जब आती है दिमाग में, तो कहते हैं कि वो चित्त की अवस्था है। लेकिन जब हम और उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, अच्छा बुरा इस लेवल पर पहुंचते हैं, तो कहते हैं वो बुद्धि की अवस्था कहलाती है। बुद्धि मीन्स आपकी इंटेलिजेंसी, जो आपको समझाती है कि नहीं आप ये कर रहे हो अच्छा है, ये कर रहे हो गलत है। तो ये ऐसे मन की अवस्थाएं हैं, वो भी ग्रेजुअली धीरे 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 ही योग के अभ्यास से बढ़ती हैं। तो ये मन की अवस्थाओं को जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए वहां तक पहुंचते हैं, तब हम उन पे कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। और वो तभी होता है कि जब हम इतने अनुशासित, यानी कि हम इतने उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि अगर मन ने आज का अभी कहा कि नहीं अभी छोड़ो, आप तो सो जाओ, तो एक तामसिक व्यक्ति होगा वो ये कर सकता है। लेकिन राजसिक व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, नहीं यार अभी तो मैं सेशन ले रहा हूँ, नहीं कर सकता। तो ऐसे ये जो मन की स्थितियां हैं, इन पे नियंत्रण करना, जब वो कंट्रोल कर लिया मीन्स उसका मन पे नियंत्रण है, उसका अभ्यास अच्छा है। तो ऐसे करके हम मन की वृत्तियों को रोकते हैं और उनमें सुधार करते हैं, और ये अभ्यास से ही आता है और अभ्यास से ही संभव है।
आप कुछ ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बताना चाहेंगे? और जैसे हम लोग जो समझते हैं आम जनता, प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जिससे हमारी शारीरिक स्थिति में सुधार लाता है। तो उसके बारे में क्या मैम आप कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। हाँ, मैं आज आज के टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी, जैसे डॉक्टर राठौर जी ने भी कहा कि मेंटल हेल्थ में बहुत सारी स्टेज आते हैं, तो हम अगर उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह मैंने आज के सेशन के हिसाब से उन सिलेक्टेड चीज़ों को लिया है जिसको आसानी से लोग अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट वो खुद देख सकते हैं। ये मेरा खुद का 25 इयर्स का खुद का अनुभव किया हुआ है। मैं ये बता सकती हूँ कि इतने अभ्यास से इतना फर्क आता है अगर किया तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने किया लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि जब मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं तो योग जहाँ पे काम करता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अगर हम बात करें और प्राणायाम की बात करते हैं, तो उसमें आपने बताया जैसे कि ब्रीथ फास्ट हो जाती है, बहुत एंजाइटी फील होने लगता है, बहुत घबराहट होने लग जाती है, तो ये सारी रेस्पिरेटरी रेट आपकी काफ़ी बढ़ जाती है उसमें। तो इन सब को कैसे कंट्रोल करें? तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी योग प्राणायाम किया ही नहीं है, उनके लिए एक है कि सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग वो होती है जो हम पार्ट टू पार्ट ब्रीथ लंबा लेना और छोड़ना वो अभ्यास कराते हैं। मिनिमम 5 डेज उसकी प्रैक्टिस करना होता है, जिससे कम से कम, क्योंकि लोग जो स्ट्रेस में होता है और जो नहीं भी होता है, वो कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ बचपन से ये चीज सिखाई ही नहीं गई है कि भाई लंबी गहरी सांस लेना है, तो लोग आधी सांस लेते हैं, आधी में ही छोड़ देते हैं। तो वो प्रोसीजर अगर नॉर्मल सांस लेना छोड़ना ही अगर लोग सीख ले तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सेक्शनल ब्रीदिंग में एक स्टेप बाय स्टेप है जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि उसमें सबसे पहले हम कोई भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो योग में एक नियम होता है कि आप एक प्रॉपर जगह पर बैठिए, पीठ को बिल्कुल सीधी करिए, जगह ऐसी हो जहाँ शांत हो, आज अच्छे से आप उस जगह के माहौल में बैठ पाए जहाँ शोर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं हो, ऐसा स्थान लीजिएगा। पीठ सीधी करके, गर्दन सीधी करके आपको बैठना है। सेक्शनल ब्रीदिंग में हम 3 पार्ट में करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम शोल्डर्स वाले पोर्शन में अपना श्वास को लेना और छोड़ना, लंबी गहरी लेना छोड़ना। सेकेंड में हम हार्ट, पूरा चेस्ट वाले पार्ट को पूरा श्वास लेना और छोड़ना। थर्ड है हम पेट में जाएंगे, पेट पर पूरा श्वास को लेना और छोड़ना। लोग कहते हैं कि हमने लिया लेकिन हमें पता नहीं चला, मत पता चलने दीजिए, आप उसमें बिल्कुल मत जाइए। आप ये सोचिए कि मैं इस शोल्डर पार्ट में श्वास ले रहा हूँ, मीन्स ले रहा हूँ। तो हम श्वास लेंगे, एक एक राउंड में तीनों का करना करके बताऊंगी। ये मैंने शोल्डर पार्ट में लिया। सेकेंड चेस्ट, ध्यान इसमें ये देना है कि लेना जिस गति से है, छोड़ना भी उसी गति से है। थर्ड, आपके पेट में, पेट पर आप हाथ रखिए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को फुलाते जाइए। तो ये सेक्शनल ब्रीदिंग कहलाती है, जिसका हम कम से कम 5-5 बार या 10-10 बार राउंड प्रैक्टिस पहले कराते हैं, जिससे लोगों को पहले श्वास लेना और छोड़ना आ जाए। सेकेंड इसमें है, अब हम योग पे आते हैं, ये तो एक्सरसाइज होगी ब्रीदिंग की। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपने सुना है बहुत सारी विधियां हैं, एक नहीं अनेकों विधियां हैं, लेकिन इसका जो कहते हैं ना प्रथम सीढ़ी, या जो सबसे अच्छा और आवश्यक जरूरी जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम है, जिसका अभ्यास आज के समय में किसी को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको गूगल पर अपने साइट पे मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक राउंड करके बताऊंगी कि इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि श्वास को लेते टाइम
बिल्कुल रिदमेटिक तरीके से लेते जाना है, धीरे 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 धीरे, कहीं होल्ड नहीं करना है। और फिर जैसे अनुलोम विलोम में बताते हैं कि आपको इतने सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद आप दूसरे साइड से छोड़ेंगे, उसमें बिल्कुल मत पड़िए अगर आप पहली बार कर रहे हैं। ये उनके लिए जो बहुत अभ्यासी हैं, साधक हैं, उनको करना होता है, या आप कुछ समय कर चुके होते हैं तब आप किसी इंस्ट्रक्टर से पूछ के करिएगा। तो सामान्य तौर पे श्वास को लेना, लेफ्ट साइड से हम लेते हैं, राइट छोड़ते हैं, फिर राइट से सुबह पुनः भरते हैं, फिर लेफ्ट साइड में छोड़ते हैं। तो ये हम इसको एक राउंड कहलाता है। तो हम उसके लिए अभ्यास के लिए एक नासिका मुद्रा होती है, उसको बनाना होता है, जिसमें हम फर्स्ट 2 फिंगर्स को होल्ड करते हैं, ये लास्ट की 2 उंगलियां हमारी खुली रहती है, थम और हम मिडिल फिंगर को यूज करते हैं लेफ्ट और राइट को क्लोज करने के लिए। तो एक राउंड में करके दिखाना चाहूंगी। ये एक चक्कर हमने अनुलोम विलोम का किया। इसको हम नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि अन्य नामों से भी जानते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर की जो गिनत नाड़ियां हैं उन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी प्रैक्टिस है जो हर किसी को करना चाहिए। इसके अगर मैं लाभ बताना शुरू करूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी। तो लेकिन मैंने इसको नाम दिया है सीधे तौर पे कि ये रामबाण दवा है। कोई भी आप अभ्यास करते हैं, कोई भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, आप अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस करिए, चाहे आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम हो, चाहे आप एपेटाइट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका स्ट्रेस का लेवल का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको डायबिटीज हो या कुछ भी। आप सामान्य तौर पे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस डेली सुबह करेंगे। हाँ, इसके कुछ नियम है, उनका पालन जरूर करना होता है। जैसे कि जो मैं फिर उस पे जाती हूँ, जो यम और नियम है, यम और नियम में शरीर की शुद्धि सबसे पहले है। अनुलोम विलोम बाकी प्राणायाम कर भी सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम बिना शुद्धि के, बिना फ्रेश हुए आप नहीं कर सकते। इसको आप सुबह ही करें और शुद्धता के बाद ही करें। ये इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने का है। कई लोग ऐसा होता है कि दिन में थोड़ा सा उनको ये समझ में आ गया कि 4 घंटे का गैप रखना होता है, तो कई बार वो दिन में इसको अभ्यास कर लेते हैं। तो इसके जब कहते हैं ना कोई भी चीज अच्छा प्रभाव देती है, तो अगर उसके रूल्स को फॉलो नहीं करो तो गलत प्रभाव भी देती है, तो उसका असर दूसरा भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी करना अनुलोम विलोम सुबह करना। थर्ड इसमें प्रैक्टिस है भ्रामरी की। भ्रामरी मानसिक तनाव में बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा। आज के समय में जब हमारी ये सब कोरोना का जब प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, तो सबसे ज्यादा लोगों के जो फोन आने शुरू हुए वो ये शिकायतों के लिए कि नींद नहीं आ रही है। एक कॉमन सी सबको प्रॉब्लम थी कि नींद नहीं आ रही है। तो उनको मैंने कहा कि आप भ्रामरी करिए। तो बोले इससे क्या होगा? हमने कि आप करिए तो सही, आप करिए। तो उनको हमने 2-3 तरीके से समझाया कि बैठ के करना है कि लेट के करना है, कब करना है कब नहीं करना है, वो सारा क्या। तो एक भ्रामरी का भी एक सिंपल तरीका हम देखिए। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि योग जो है विधा बहुत कठिन भी है, लेकिन अगर हम उसको सामान्य तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो की जा सकती है। तो धीरे धीरे हमारे विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने पिछले 50 सालों से यही काम किया है। उन्होंने हर योग की हर स्टेप पर, हर चीज पे, प्राणायाम हो चाहे आसन हो चाहे बीमारियां हो, हर चीज पे अनुसंधान करके इस चीज को उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि किस चीज का कितना इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। तो इसी तरह भ्रामरी का मैं कहना चाहूंगी कि ये सीधा सीधा शब्द है। एक हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है, स्पेशल टेक्निक्स कहलाती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, उसमें एक MSRT भी है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, जो खास तौर पे इसी तरह की समस्याओं को लेकर उसका अभ्यास कराया जाता है। उसमें ओंकार चांटिंग होती है।
तो जो प्रभाव वहाँ पे वो पड़ता है, अगर हम मान लीजिए कोई और लोग भी हैं जो ओमकार का ध्यान नहीं करना चाहते, चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट ये बहुत अच्छा है कि वो भ्रामरी का अभ्यास करें। तो भ्रामरी का एक मैं सिंपल कि जो भौरा होता है उसकी तरह भी फीमेल की तरह उसकी आवाज को निकालना, लेकिन उस आवाज को निकाल कर हमें उसका जो प्रभाव है, उसकी प्रैक्टिस को, उसकी जो गुंजन है, उसका साउंड जो है, उसको हमको ब्रेन के पार्ट में फील करना है, मतलब महसूस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्थिति है, एक तो अपर टंग हम तालू में ऊपर लगा लेते हैं, जिससे बीच का जो रंध्र है, आपको पता है कि सारा अंदर इन होल है, वो रंध्र खुल जाता है। और जब हम कोई साउंड मुंह में करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन होता है वो उधर हमें ज़्यादा सुनाई पड़ता है। तो हम पहले वो करते हैं, फिर कानों को बंद करते हैं, कान में उंगली डाल के बैठ जाइए। इसके लिए भी एक मुद्रा है, मुद्रा में नहीं जा रहे, सामान्य तौर पे आप कान में उंगली डाल के बैठ जाइए और फिर वो लंबी गहरी सांस लीजिए और वो साउंड को आप मुंह बंद करके अंदर ही अंदर बोलिए। तो आप देखिए दो तीन बार तो आपको बड़ा ऑड सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत आनंद आने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बल्कि डेली करना अच्छा लगेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसके बहुत सारे मैंने केस जो मेरे पास भी हैं, बहुत सारे लोग अभी सुन भी रहे होंगे उनमें से, कि ऐसे ब्लॉकेज वाले केस थे जिनकी आर्टरी बंद थी, वो तक उससे खुल गए। वो बिल्कुल प्रूफ है। आपके एम्स का ही एक केस है जिसमें उनकी जो ब्लड सेल्स थे और आर्टरी थी जो आंखों को उनको दिखाई नहीं पड़ता था, वो सिर्फ भ्रामरी से ही खुली थी। तो उसका हम जब गुंजन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को एक, हम सीधे शब्दों में कह के, बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है, उनका एक मसाज हो जाता है और धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है, हमारे रंध्र खुलने लगते हैं, हमारे पोल खुलने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं और हमारा जो एक डिस्टर्ब माइंड है जो भटक रहा है, वो धीरे 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 शांत अवस्था में आने लगता है। तो भ्रामरी मैं टांग ऊपर करके लगा रही हूँ। आप देखिए जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टंग, ये पार्ट, ये जॉ, पूरा आंखों के सभी हिस्से में इतना वाइब्रेट होता है कि थोड़ी देर बाद आप अगर 15 राउंड तक भी तक जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पसीना आने लगता है। तो ये अभ्यास मेंटल हेल्थ में बहुत उपयोगी है, इसको ज़रूर करना चाहिए। सबसे अच्छा एक जो, और इसमें सारे योगों में सबसे अच्छा जो माना जाता है, लोगों पसंद करते हैं, शवासन। कुछ भी प्रैक्टिस करें, अगर शवासन नहीं किया तो मीन्स योग ही नहीं किया, ऐसा सब समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शवासन में तो कुछ करना ही नहीं होता है, जस्ट लेट जाओ। तो ऐसा नहीं है, शवासन बहुत उपयोगी है और इस मानसिक अवस्था को कंट्रोल करने के लिए तो और भी ज़्यादा उपयोगी है। शवासन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लेट गए हैं, लेटना एक अलग तरीके से होता है, हम बिस्तर में किसी भी तरीके से लेटते हैं, लेकिन शवासन की एक स्थिति होती है, उसमें हम प्रॉपर सीधे जब लेटते हैं तो हमारे साथ चेतना जागृत रहती है, हमारा अवेयरनेस जो है हमारी बॉडी के प्रति, मन के प्रति, हम कॉन्शियस रहते हैं उसमें। जब हम लेट जाते हैं हमारी स्थिति बनती है, हमें शरीर, पैर थोड़े फैलाने होते हैं, हाथ फैलाना होता है, हम हाथों को ऐसे ऊपर की ओर, हथेली आसमान की तरफ खोल के सीधा लेटते हैं। कहते हैं वातावरण में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारी इन्हीं के माध्यम से, हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से ही वो हमारे शरीर में आती है, हमें ऊर्जा देती है। तो हम जब शवासन में लेटते हैं तो एक तो शरीर बिल्कुल शांत और आराम की स्थिति में पहुंच जाता है। जब आराम की स्थिति में शरीर पहुंच जाता है तो स्वाभाविक के मन में जो चल रहा है वो भी थोड़ा सा शांत होता है। अब ऐसे कंडीशन में शवासन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो ये होते हैं कि आप अपने मन में धारण करिए, सोचिए कि आपका शरीर बिल्कुल शिथिल, एकदम आराम की स्थिति में पड़ा हुआ है। तो मन जब शरीर पे जाता है तो वो दिखता है कि हाँ मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ।
वो होता है, तब फिर कहा जाता है कि आप अब अपने मन को वहां ले जाइए जो आपको अच्छा लगता है। तो मन स्वाभाविक है, आपने कहा, उसके दिमाग में ये बात गई, शब्द गए, तो उसके अंदर वो रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उसको अच्छा क्या लगता है, तो सीधी सी बात है, उसको आकाश अच्छा लगता होगा, उसे फूल अच्छे लगते होंगे, या किसी का चेहरा अच्छा लगता होगा, जो कुछ भी अच्छा लगता होगा उसका ध्यान वहां जाएगा। और जब वहां ध्यान जाता है तो स्वाभाविक मन शांत होता है, शरीर भी शांत होता है, रिलैक्स फील करने लग जाते हैं। तो ये शवासन की और भी विधियां हैं, तो लेकिन शरीर को हम शांत कैसे करें वो एक मैं उसमें बता रही थी। अब इसमें और अगर हम एडवांस में जाते हैं तो उसमें एक नाद अनुसंधान, नाद क्रिया कहलाती है, उसको भी किया जा सकता है। उसका मैं अभी अभ्यास और बताना जरूरी नहीं समझती, वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रैक्टिस थी। इसमें लूजनिंग एक्सरसाइज, जैसे आपने बताया कि बॉडी पेन, जो स्ट्रेस में होता है उसको बॉडी पेन बहुत रहता है, तो लूजनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसको हम शीतलीकरण भी कहते हैं, योग में हम शीतलीकरण कहते हैं, और लेकिन वो एक्सरसाइज के भी पार्ट हैं। तो योग की जो प्रैक्टिस होती है बस और एक्सरसाइज में, मैं उस टॉपिक पे तब आऊंगी जब आप वो वाला प्रश्न पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे सभी दर्शकों को प्राणायाम करने का पद्धति आपने बताई। हम लोग जरूर सभी लोग करते भी हैं और अभी और जोरदार से हम लोग करेंगे। अभी मैं डॉक्टर राठौर जी के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर राठौर, modern day science confirms that practice of yoga has tangible physical health benefits that include improved brain function as well as immune health, improve nervous system functioning and strength. The overall consensus is that yoga has many positive effects on mental health that go beyond the effects of other low to medium impact physical activity. And these effects are likely due to chemical changes in the brain. Sir, I would like to ask you that what is the science behind meditation and how does meditation reduce the stress and anxiety? Over to Dr. Rathore. Uh, Thank you, madam. It's very important questions to understand that how the meditations they will affect our brain. So it is better if we will show some slide, then you will able understand more better. Can you please show the slide? Yes, we'll just do that. Yeah. So as you everybody know that the nowadays the meditations we are all use as a meditation, everybody to do the meditation, but still we should not know the basic scientific uh, aspect of this meditation. So can you next slide please? This is not, this is the first meditation slide. Yes, slide. So as you know that the meditation is a tool of mind. As Ladadidi told that your mind is a very, very important, it's just like a monkey. So we have a one tool. यह एक तरह का हथियार है. Yes, 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 this. So as you know here, the meditation is a tool. I am again focusing this words tool. टूल का मतलब होता है हथियार. यदि मैंने आपको कोई हथियार दिया, तो यदि आप उस हथियार को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा. So that's the research study focus, how we can do the meditation properly. If you know about, as Dadi told about this, Patanjali is the founder of yoga. He describing the Ashtangic limb, 8 limb. So these include the Yam Niyam and Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi. If you just see this, all these 8 limb, out of this 8 limb, the Yam and Niyam, this is the 2 important limbs which are more on a philosophical perspective. If you talk about the Pratyahara, if you talk about the Samadhi, so it's are more and more philosophical perspective.
it is very, very important to understand that which is the philosophical perspective. If you think that the yum, they are they are having a 5 moral qualities. So the more and more if you think about the Jain religious, so this all the Jain religious, they are developed from the yum, ahimsa, whatever that's called. And if you think about the both dharma, so dharana, dhyan, samadhi, these are the principal aspect of this particular the both dharma. So this 8 limb is a very, very important to understand in every detail. But if you see observe these 8 limbs, the asana, pranayam, and dharana and dhyan, it's are more and more in a scientific perspective. It's not much as much like a philosophical perspective. So Patanjali is definitely they are telling about that this meditation is the dhyan, but what we are do the practice in meditation is not the dhyan, it is a dharana. So as in our Indian cultures or the traditions in a Western cultures, we have to do a lot of diversity in the meditations. Like some they are doing the breath meditation, some are doing the nad meditation, some are doing these vipassana dhyana, some are doing the compassion meditation. There are 120 methods of the meditations. So can you share the second slide? So there are the 120 methods of the meditations, but the neuroscientists, they are start doing the research, see how they are the different variety of the meditations. So what are the different type of the meditation? What is the need of the different type of the meditations? Accordingly, they are discovered and they are found these some meditations having some their different neural activations in the brain, and some meditations they are having different neural activations. So accordingly, the neural activation of the brain, they are classified broadly the meditation in 3 components, like the focus attention meditations, open monitoring meditation, and the compassion meditation. So all the 120 meditation, if we are classified, so it's having a 3 category. If I am talking about the focus attention meditation, suppose you are doing some imaginary meditations, we have to or guided imaginary meditation. So it is again the variety of the focus attention meditations. When we are talking about the mantra meditation, somebody they have to repeat it doing the chanting of the mantra. So again, whatever the neural circuits which are involved in the mantra meditations are same as when we performing the breath meditation or the Soham sadhana. So there are the neural circuits which are involved in a different kind of meditations. They are a same. So accordingly, we can classify this is a 3 category. Okay. So first, can you share this next slide? Focus attention meditations. Now, this is the meditations where we have to focus on a specific object. For example, if you focus your all the consciousness on incoming and outgoing breath. Understand? If you focus only on the breath, so what happens if if we are observe, just close the eye and start focusing on the breath, whatever the incoming breath and outgoing breath, what happens within a fraction of times you have not meditated. So what happens within a fraction of times your mind start wandering. That's लता दीदी ने बताया कि भटक गया mind आपका. So within a fraction of times what happens your mind, because mind wandering phase में चला गया. Now what happens, suppose you are start doing the meditations, then suppose you are aware about that कि आपका दिमाग भटक गया. That awareness is very, very important. Sometimes क्या होता है, आप अवेयर ही नहीं होते, आप भटके हुए अवस्था में चले जाते हैं. Yes, तो वो तो प्रॉब्लम होती है. लेकिन when you are aware that your mind start wandering, so that awareness is a very, very important step. And after the awareness that your mind start wandering, then you will try to shift this mind to again on your breath. If you understand this cognitive model of meditations, what I'm again repeating to just that you will know more better and better understanding. First, you try to focus on your breath.
within a fraction of time, your mind start wandering. Then you aware and just you try to aware and try to shift this wandering mind to the breath. So if you understand, these are the cognitive model of meditations, particular on the focus attention meditations. So can you show the next slide? So these are the 4 important area where your mind try to do the activity, your brain structures, they are trying to do the activity. Look here, this is the one important equipment is called the functional magnetic imaging. So when we do the functional MRI and when we do the start the meditation in the focus stage, that time the specific neural structures in the brain, they are activated, is called the dorsolateral prefrontal cortex. Understands? And within a time, what happens? Your mind start wandering. आपको इधर उधर की विचार आना शुरू हो गए. तो जैसे ही आपको इधर उधर की विचार आना शुरू हुए, तो आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी. तो वो चेंज होकर वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, वहां पर पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स की एक्टिविटी वहां पर स्टार्ट हो गई. तो वॉन्डरिंग फेज पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई? वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तथा पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये 2 चीजों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. और यह देखा गया है कि जो आपके जो ब्रेन जिस समय वॉन्डरिंग फेज पर रहता है, जिस समय आपका ब्रेन भटक जाता है, जिस समय आपका मन भटक जाता है, तो उस भटकी हुई अवस्था को एक जो न्यूरो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्क्राइब किया है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स. सो ये जो ब्रेन की स्पेशल सर्किट्स होती है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स, ये हमारी भटकाऊ माइंड की अवस्था है. तो ऐसा देखा गया है जब भी आपका माइंड भटकता है तो उस समय डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है और उस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी से ही सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है. तो जैसे ही आपने अवेयरनेस स्टार्ट किया और जैसे अवेयरनेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो फंक्शनल कनेक्टिविटी जो न्यूरल सर्किट्स की है वो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होते हुए ऑटोमेटिकली डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाती है. और डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है आपका अटेंटिव माइंड है, आपका माइंड जो प्रेजेंट मूवमेंट पर रहता है, दैट इज कॉल्ड द डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. सो कैन यू शो दिस नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट बताएंगे आप थोड़ा सा, तो प्लीज शेयर. यस, ये हमारा ब्रेन है, जैसे कि आप देख रहे हैं. हमने एनाटॉमी अपने डिसेक्शन हॉल में ब्रेन को काटा. इफ यू सी दिस ब्रेन, द ब्रेन हैविंग a different surfaces, the supralateral surfaces, inferior surfaces and the medial surfaces. So this is the picture of the medial surfaces. आप इस medial surface में ब्रेन के अंदर का पार्ट है medial surface का. आप इसमें देख रहे हैं एक सी शेपेड बैंड बना हुआ है, इसको हम कार्पस कैलोजम बोलते हैं और उसके सामने वाला भाग को हम रोस्ट्रम बोलते हैं और जेनु बोलते हैं. उसके सामने पे जो येलो पॉइंट दिख रहा है, यही जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का वेंट्रोमीडियल एरिया है जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनाता है. भटकाऊ माइंड जब होता है तो यही ब्रेन का हिस्सा एक्टिवेट होता है. आप एक और पिक्चर देख रहे हैं, ये लेटरल जो सल्कस है उसके नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं एमेटिलॉइड बॉडी. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये एमेटिलॉइड बॉडी अपने आप में एक ऐसी बॉडी है जो सारे तनाव, सारे स्ट्रेस, सारे फियर रिस्पॉन्स, सारे इमोशंस जो निगेटिव वे पे जाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जब whenever the activity of the amyloid body is more and more, so we have to be more and more stress problem, we have more and more fear, psychosis, we have more and more emotion related problem. So it is very, very important to understand the supply of the amyloid body. तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि यदि आपका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब जब आपका मन भटकाव स्थिति पे रहता है, तो उस समय ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ये जो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और जब इसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसका इंटरकनेक्शन होता है एमेटिलॉइड बॉडी से, तो इसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है. जब इसकी एक्टिविटी बढ़ती तो ऑटोमेटिकली आदमी ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा फियर, ज्यादा निगेटिव इमोशन से ग्रसित हो जाता है. अब मैंने क्या बताया कि जब आप कंटिन्यूअस फोकस अटेंशन मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये जो इंटरकनेक्शन जो सर्किट्स है ब्रेन की,
इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल इमोशनल सर्किट्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल इमोशनल सर्किट्स। एंड दिस ऑल दी सोशल इमोशनल प्रॉब्लम, आप सोसाइटी के साथ हम बोलते हैं कि मेरा जो व्यवहार है अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉपरली नहीं आ रही है, मेरा सेल्फ अवेयरनेस अच्छा नहीं है, मैं लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रख पा रहा हूं, है ना, मैं प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो ये सारा का सारा जो समस्या है, ये जो प्री फ्रंटल इमोशनल सर्किट्स के प्रॉपरली काम न करने की वजह से हो जाता है। तो अब आपका उद्देश्य यह है कि आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यदि ब्रेक पर आप फोकस करते हैं तो क्या होगा कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल्स की एक्टिविटी कम होगी, तो इसकी जब एक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली एमेटिडाइड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लेटरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड रहेगा वो प्रेजेंट सिचुएशन पर रहेगा, तो आप सेल्फ अवेयरनेस रहेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएंगे, और सोसाइटी में आप प्रॉपरली लोगों से बात कर पाएंगे और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो सोशल इमोशनल जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, नाउ this is very very important to you. This is the non directive meditations. What happens, आजकल आप जब कभी कभी आप लोगों को ध्यान सिखाते हैं तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार आपके जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि साहब मैंने ध्यान किया है, ध्यान करने के बाद मुझे और अकेलापन लगने लगा, साहब मुझे और खराब लगने लगा। तो आप इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है उसको समझिए। लोग बात क्या होता है, चुपचाप ध्यान का मतलब शांत बैठ जाना ही ध्यान समझते हैं। तो यदि कोई ध्यान जिसमें डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपरली नॉन डायरेक्टिव मेडिटेशन है, तो रिसर्च स्टडी ये कहता है कि नॉन डायरेक्टिव मेडिटेशन जब भी की जाएगी तो उस पर आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एमेटिडाइड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो आदमी जो अकेला रहता है, तन्हा रहता है, सैडनेस रहता है, वो और भी अकेलापन महसूस करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग को प्रॉपरली जो वैज्ञानिकता, जो सर्किट्स की वैज्ञानिकता बहुत अच्छी से मालूम होनी चाहिए, और बीइंग ए थेरेपिस्ट you should properly prescribe to the every students to in what is the things we have to be adopted in a proper way. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा एक निवेदन भी है कि नॉन डायरेक्टिव मेडिटेशन हमको नहीं कराना है। इसके अलावा जैसे कि आज हमने न्यूरल सर्किट्स की बात की, फोकस अटेंशन मेडिटेशन जिसमें माइंडफुलनेस है, ब्रेथ है, मंत्रा है, तो जो मंत्र भी आप करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, तो सारा सर्किट इसी वाले जो हमने आपको कॉग्निटिव मॉडल समझाया वही उसी पे बेस्ड है। इसके अलावा जो दूसरा वैरायटी जो मेडिटेशन का है, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन और कंपेशन मेडिटेशन, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस होती है। तो यदि बीइंग ए बेसिक रिसर्च ये बोला जाता है कि अगर आप हफ्ते तक 8 हफ्ते तक 8 weeks if you are do the continuous practice of this focus attention meditation, यदि आपका दिमाग, आप जब भी कहीं कुछ काम करते हैं तो आप पाते हैं कि ज्यादा भटकता रहता है आपका दिमाग, इधर उधर उधर इधर, तो 8 हफ्ते के कंटिन्यूअस अभ्यास 20 मिनट का अगर अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपकी न्यूरल सर्किट्स है और डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो मन है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी, जो उसकी सर्किट्स धीरे धीरे एक्टिविटी शांत हो जाएगी। इसे बोलते ज्यादा मन प्रसन्न उपाया, मतलब मन अपने आप धीरे धीरे प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। तो कैन यू शो मी द नेक्स्ट स्लाइड? So that is the very very important things what I try to explain, that the at least you will do the 8 week 20 minutes this exercise. Definitely I am sure a lot of research study have to read that the after practicing the 8 week continuous 20 minutes focus attention meditations, they change your mind. Thank you. Thank you, sir. Besides medication and different therapies, as a medical practitioner, Dr. Rathore, do you recommend yoga to take up in order to promote one's health? You have been treating patients in the hospital. So besides medication and different therapies, do you recommend yoga to take up in order to promote one's health and improve the well-being? Over to Dr. Rathore. मैडम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टर की बहुत पढ़ाई की है, तो मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता। लेकिन
मैं ये जरूर बोलूंगा आपको कि आप योग को, मेडिटेशन को, प्राणायाम को एज ए एडजुवेंट आप यूज कर रहे हैं. सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यू यूज दिस ऑल द थिंग एज ए एडजुवेंट्स. और मेरे को कहने में ये एक भी अचंभा नहीं होगा कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो सरप्राइजिंग रहेगा. यदि आप हाइपरटेंसिव है, जैसे लता दीदी ने बताया कि यदि आप अल्टरनेट नास्टर ब्रीदिंग करती है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करती है, रिसर्च कहता है कि यदि आप 20 मिनट तक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करती हैं तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंसी बढ़ जाएगी. तनाव हो क्यों रहा है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटी कैसे हो रहा है. तो रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं. आप 20 मिनट कीजिए, आप 1 महीने तक देखिएगा आपका तनाव दूर हो जाएगा आपका. तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि आप, हाँ, आप इसको ध्यान, जो ये जो हमारी जो साइंस है, ट्रेडिशनल साइंस है, उसको आप एज ए एडजुवेंट आप यूज कर लीजिए. तो डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट आएंगे बहुत सरप्राइज होंगे. और सबसे बड़ी बात ये होगी कि डॉक्टर के ऊपर लोड भी कम हो जाएगा. तो डॉक्टर के ऊपर लोड कम हो जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज आप देखिए कि बाग बगीचे में जो 2 शब्द योग सीखते हैं वो भी अपना योग सिखाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े दावा कर देते हैं. तो वो गलत प्रैक्टिस है. उसके वजह से योग का जो साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है वो कहीं छूट जा रहा है और उसका जो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों पे. तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग सही में जो विज्ञान प्रसार जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. और मुझे खुशी हुई अपने अंदर से कि आप लोग इतना अच्छा जो वैज्ञानिकता को लेकर के और फिलोसॉफिकल और जो साइंटिफिक दोनों को कंबाइन लेके आप आगे आ रहे हैं. और लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को आप लोग दूर करने के लिए बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं. तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. थैंक यू डॉक्टर राठौर. डॉक्टर लता, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 महामारी संकट के समय पे लोग भय, चिंता, तनाव और अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं. घर से काम करने की नई व्यवस्था शुरू हुई है, अस्थायी बेरोजगारी, बच्चों के घर पर स्कूली शिक्षा और परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों के साथ सामाजिक संपर्क की कमी का सामना करते हुए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करें. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योग, घर से योग और परिवार के साथ योग. मैम, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि पारिवारिक सुख, उत्साह आदि के लिए तनावपूर्ण समय में इस संकट से कैसे निपटे और योग कैसे सहायता कर सकता है, विशेष रूप से किशोरों एवं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपके क्या सुझाव है? लता जी. अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है बहुत रिलेटिव है. ये आज ही, मतलब कल ही बल्कि देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को संदेश दिया कि इस बार जो योग है परिवार ध्यानम योग कहलाएगा, कि हम परिवार के साथ योग कर रहे हैं. और इसके साथ ही उन्होंने एक और सभी को आग्रह किया है कि इस परिवार ध्यानम योग को कंटिन्यू करिए. मतलब आगे स्थितियां सुधर भी गई और बाहर लोग करने भी गए, लेकिन जो स्थिति आज है और आप जो जिस उत्साह और प्रेम के साथ परिवार के साथ आज योग मना रहे हैं, अभ्यास करेंगे, इसको आप नियमित आगे भी करिए. तो बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है. और आपका जो प्रश्न है उसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा इतना ये जोड़ना चाहूँगी कि योग अलग अलग तरीके से है. एक आज के समय में और भी थोड़ा सा उसमें एडवांस किया गया है कि जैसे अगर हम कोई बुजुर्ग है जो वो अभ्यास कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस को बच्चे नहीं करना चाहेंगे या कर भी नहीं सकते, या वो जो कर रहे हैं वो बुजुर्ग नहीं कर सकते. इसी तरह महिलाओं का है. तो एक एज फैक्टर है कि किसके लिए क्या आवश्यक है. अगर बच्चा जॉगिंग कर सकता है तो बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए भी अभी तक बहुत सारे एक मॉड्यूल तैयार किए जा चुके हैं. एस व्यासा ने भी किए हैं और भी कई लोग कर रहे हैं. तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगी कि आप अपने, जैसे जिनके घरों में बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए क्रीड़ा योगा कहलाता है, मतलब खेल खेल में योग. तो उनको ऐसा नहीं लगता कि बस उनको बैठा के हमने योगा अभ्यास कराना शुरू कर दिया, वो उनके लिए थोड़ा बोरिंग रहता है क्योंकि बच्चे हैं. तो खेल खेल में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को योग के लिए प्रेरित कर सकते हैं. महिलाओं का है. महिलाओं के ऊपर आपने सही बात बोली कि आज के समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो
थोड़ी सी महिलाओं को ही ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक समय था पहले कि बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चला गया, तो जो एक बीच का टाइम होता था उसमें वो अपना कुछ कर लेती थी, स्वास्थ्य को लेकर करना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, तो वो समय अब चूंकि परिवार संयुक्त रूप से एक ही जगह एक ही टाइम में और नॉन स्टॉप एक ही जगह पर रह रहा है, तो स्वाभाविक है कि काम भी फिर कंटिन्यू होगा, तो वो अपने लिए समय नहीं निकाल नहीं पा रही हैं। तो मैं तो इस समय ये उसके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि ये अभी जो मैं बराबर मेरी काउंसलिंग हो रही है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने में आई हैं, इससे भी बहुत गलत भी आई हैं। तो मैं उन परिवारों को ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि आपके घर की धुरी वही है, वही पूरा घर को चलाती है। अगर आपके सिस्टम में अगर वो मेन की पर्सन बीमार हो गया या ऐसे कुछ हो गया तो आप सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बेहतर है कि आपका घर बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, तो आप अपना प्रोग्राम को, घर का शेड्यूल को ऐसे सेट करिए कि वो भी आपके साथ अभ्यास अपना प्रैक्टिस कर सके, और इसके लिए फोर्स करिए उनको, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं ना उनको काम के आगे अपनी भूख भी नहीं दिखाई देती है। वो कहेंगी पहले मैं काम कर लूँ तब मैं ये करूँगी, तब मैं वो करूँगी, तो उनके लिए फोर्स करना पड़ता है। तो जिससे वो स्वस्थ रह सके, और स्वस्थ रहेंगी तो सीधी सी बात है झगड़े नहीं होंगे, डांटेंगी नहीं, उनको खुद का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये रहेगा। इसी तरह तो उनका एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है जो एक्सरसाइज इजी वे में सबको मिल जाती है, क्या अभ्यास करना है क्या नहीं वो कर सकते हैं। जैसे लूजनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, अपनी जो डायनेमिक एक्सरसाइज हैं वो हो गई, फिर आसन में जो जो अच्छे लगते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार ही ज़्यादा स्टेप में करके उसको बराबर कर लेते हैं, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है उसमें कि 15 राउंड कर लिया ऐसे। लेकिन बुजुर्ग हैं वो उन दोनों के बराबर वाला नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक मॉड्यूल बना हुआ है चेयर योगा का। चेयर योगा का अभी आसानी से आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मिल जाता है। तो उनको भी बहुत ज़रूरत है, इसके टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि बच्चों की कुछ समस्याएं दिखती हैं तो सबसे पहले वो नाराज या उनको ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, तो उनका अभ्यास ज़रूरी है, पर वो कैसे करें इसके लिए उस चेयर योगा के मॉड्यूल को भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने भी उस पर एक बुक लिखी हुई है कि चेयर योगा पे, तो मैं उसको शेयर कर सकती थी उसका, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो ऐसे हम तीनों जो एज ग्रुप है उनको हम अलग अलग तरीके से योग के लिए प्रेरित करें, और उनको करने के लिए जरूर से जरूर एक दूसरे को ही बोलना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ने बोल दिया और सबने मान लिया, नहीं होता है। बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, और जब उनको अच्छा लगने लगेगा तो वो फोर्स करते हैं खुद कि नहीं मम्मी आओ आप करो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी ऐसी ही एक फैमिली का, जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों बेटियां उनकी बाहर हैं, जॉब करती हैं। तो उनको प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव पर्सन है, वो मतलब समाज में उनका इतना ज़्यादा नाम है कि वो घर में कभी रुकते ही नहीं, लेकिन अब घर में है पूरे टाइम, और वाइफ भी प्रिंसिपल है, तो सीधी सी बात है कि दोनों ही अच्छे बिजी रहने वाले पर्सन। अब एकदम से ऐसे लोग बैठ गए हैं घर में तो दिक्कतें आती हैं। तो उनका प्रश्न था नींद नहीं आती। अब दोनों ही स्थिति थी, तो मैंने कहा कि किसको मैं ट्रीटमेंट दूं, आपको नींद नहीं आती है, आपकी वाइफ को पूरी नींद आती है, तो उनको ज्यादा आती है, वो कहते हैं कि वो किसी भी टाइम सो जाती है, और वो हस्बैंड है वो नहीं सो पाते हैं। तो हमने कहा कि देखो अभी मैं तो इतना समझा नहीं सकती, लेकिन हाँ एक सलाह दे सकती हूँ कि टीवी पे बाबा रामदेव जी सुबह आते हैं लाइव, आजकल उन्होंने ये सेवा बहुत अच्छे से दे रखी है, और वो खुद आते हैं, आप उसको वो करिए, उसको देख के प्रैक्टिस करिए। और सच में उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और बहुत खुश है, नींद भी आती है, बाकी सब भी अच्छा है। आजकल और भी काम शुरू हो गए हैं, गाने वाने का गाना वगैरह, तो कहने का मतलब है मन बहुत अच्छा हो जाता है उससे। तो ऐसे हम परिवार को, संयुक्त परिवार को, या हमारा अगर एकल परिवार भी है, पति पत्नी बच्चे भी हैं, तो इस पैनिक कंडीशन से हम निकल सकते हैं। थैंक यू। आपने चेयर योगा की बात करी। चेयर योगा तो मुझे लगता है जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनके लिए भी चेयर योगा बहुत लाभदायक होगा, हाँ क्योंकि नहीं, एक कॉर्पोरेट योगा भी है,
जो बहुत ड्राइव करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक नहीं, योगा एक रहेगा, ऑफिस मतलब के लिए भी, जो लोग ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उनके लिए भी योग का मॉड्यूल अलग है कि आप अपने ऑफिस में भी कैसे क्या क्या चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पूरा कोर्स है। और मैं इस बीच में भूल गई थी, आपको बताना चाहूंगी स्पेशली आपको, कि जो अनुलोम विलोम है, अगर 6 मंथ, मैंने आपको पहले भी शायद बोला था, 6 मंथ अगर उसकी प्रैक्टिस कर ले, उसको कितना भी पुराना माइग्रेन हो, उसको साइनस का प्रॉब्लम हो, उसको कोल्ड रहता हो बराबर से, उसको एलर्जी हो, एस्थमेटिक हो, एस्थमेटिक थोड़ा सा टाइम उसमें थोड़ा और भी एड ऑन करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल चली जाती है गारंटी के साथ। बहुत सुंदर। मेरी आपसे आखिरी प्रश्न है कि संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रसार हेतु हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश क्या होगा? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि हम योग करते हैं पर इससे क्या होगा, वो उस चीज़ को ना बहुत, उनको एक डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना, वहाँ और भी समस्याएं आएंगी, उस सब चीज़ों को वो सहन कर सकते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अभी भी बिलीव नहीं होता है कि हम योग से ठीक हो सकते हैं या हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो मैं उन सभी को ये चीज़ के लिए उनको कहना चाहूँगी कि योग के प्रति पॉजिटिव होइए, और जब तक आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो मानसिक अवस्था है, जो कहते हैं ना आदि चा व्याधि, जो मन में अगर धारण कर लिया तो वो तन पे जाता है, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता, तो उस चीज़ में आराम नहीं मिल पाएगा, निगेटिविटी कंटिन्यू रहती है। तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और बाकी सब लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिस है उसको आप नियमित करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मैं फिर बार बार दोहराऊंगी कि प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो योग है अपने आप बॉडी को कैसे ट्यून करेगा वो आपको कुछ दिनों में खुद ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, मैं ये संदेश देना चाहूंगी। Thank you, ma'am. Dr. Rathod, I would like to ask you, what will be your takeaway message for viewers who are in practicing yoga along with the medicines and other therapies? My advice is that please do not stop your drugs first. And most of the times we see that some persons they are starting yoga and they stop the medicines and they have to more and more critical problems in their future. So to learn take home message, regular practice of focus attention meditation for 8 big 20 minutes per day. Definitely you will observe your changes the brain activity. You will Yes. experiences that things, because I am not doing telling these sentences, it is already research they are going on the Harvard University. So there's a lot of work, because जो foreigners होते हैं वो scientific approach ज्यादा रखते हैं। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ज्यादा चिंतन या ज्यादा आपको मन भटकता है तो आप इसको अभ्यास करें 20 मिनट प्रतिदिन, और आप 8 हफ्ते के बाद जरूर मुझे अपना अनुभव शेयर करें कि कैसा आपका रहा, भटकाव कम हुआ कि नहीं हुआ करके। ताकि भटकता हुआ मन ही सब चीज प्रॉब्लम करता है, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन यदि आपका वर्तमान पे आ जाए तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। It's my take home message to all the viewers. Thank you, Dr. Rathod. We have come to the end of the discussion, friends. You have heard both of our experts, and take-home message is that mental illness are diabetes or any other chronic illnesses. All chronic diseases have behavioral components as well as biological components. The only difference here is
that interest is the brain instead of heart. Yoga makes a good complementary treatment for issues that require medication and or therapy, as it is natural, accessible to all, and relatively easy to engage in. And it is the activity that connects the mind to the body. So practicing yoga can help people cultivate mindfulness, develop greater awareness, and improve their ability to focus on what is at hand. Now we will take the questions from the audience. When the time already, we have crossed the time, so it's already 4:33. So we will take around 10 questions, and we will be now asking the questions. So these questions we have received through chat boxes and comment boxes. So I'm going to read these questions to both the panelists and Dr. Lataji to reply to these questions. This is a question from Mr. Adarsh Singh. Why don't I share my emotion to anyone? Any one of you can reply to this. Dr. Rathur और लता जी आप बोलना चाहेंगी? एक प्रश्न हमारे व्यूअर्स से आए हैं. Why don't I share my emotion to anyone? There is a problem with the sound. आवाज हाँ. Oh, is it? Please repeat question. So can you hear me now? Hello. Hello. Yeah, am I audible? Can you hear me? हाँ, एक बार क्वेश्चन फिर से बताएंगी? ये पूछ रहे हैं, आदर्श सिंह जी पूछ रहे हैं, why don't I share my emotion to anyone? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, जैसे नहीं कर पाते हैं. तो उसको आप कैसे, मतलब उनको हेल्प चाहिए, आप उनको सुझाव दीजिए कि किस तरीके. उनको बोलिए, मतलब मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप सुन पा रहे हैं आपको? आप जो लोग जिनके साथ वो बहुत फेमिलियर हैं, उनके साथ धीरे धीरे बात करना शुरू करें, क्योंकि क्या होता है कि ये भी एक मन की स्थिति है कि कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, एक बाहरमुखी होते हैं. जो बाहरमुखी होते हैं वो बहुत बोलने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बोलते हैं, लेकिन जिनको अंदर ही अंदर रहने की आदत पड़ी हुई होती है, तो वो हर चीज़ में रुक जाते हैं. उनको लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, या मैंने कुछ बोला तो उसको कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा, वो नाराज़ तो नहीं हो जाएगा. तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो अपने मन में ही सोच लेते हैं और अपने मन में ही उसका जवाब भी दे देते हैं. तो वो एक स्टेटस होता है माइंड का. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिनके साथ बहुत फ्रीली बिहेव करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे उसकी बहन हो या उनका कोई फ्रेंड हो, उनके साथ ऐसी बातें करना शुरू करें. और करते करते वो प्रैक्टिस होगी. वो किसी से भी नहीं बात करेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे. धन्यवाद. Dr. Rathur, there's a question for you. Can yoga improve sleep patterns? आवाज ब्रेक हो रहा है आपका. क्वेश्चन नहीं सुनने में आया. अच्छा, Dr. Rathur, can you hear me? अच्छा, Dr. Rathur, लता जी सुन पा रहे हैं? Hello, Dr. Rathur, can you now hear me? मुझे आ रही है, आप बताइए. अच्छा, मैं बता रही हूँ. How to control stress of increased expectations after achieving a level of success? ये पूछना चाह रहे हैं कि जब एक सक्सेस लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते रहते हैं, उसमें स्ट्रेस पैदा होता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक्चुअली पोजीशन होती है जो जब आप कहीं अपनी लाइफ में अगर सक्सेस हो गए, तो सीधी सी बात है कि आपके ऊपर फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं. तो स्थिति वो होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ये अपने को ही सोचना पड़ता है, अपना ही प्लान करना पड़ता है. मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी
कि एक बार ऐसा हुआ था मेरी ही लाइफ में, मैं अपना बता रही हूँ कि किसी अच्छा पोस्ट पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो जो मैं चूँकि योग फील्ड से भी हूँ, दूसरे भी मेरे एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे ही वो बहुत बड़ी पोस्ट थी, जैसे ही मैं उस पोस्ट पे आई, मेरा फ़ोन पूरा टाइम बंद रहता था। मीन्स कोई कॉल नहीं आती थी। मुझे कई बार उठा के ये देखना पड़ता था कि फ़ोन ख़राब तो नहीं है। तो अब ये इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब और लोगों को ज़्यादा फ़ोन आना चाहिए। तो फिर मैंने किसी ऐसे ही व्यक्ति से पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अब आपका लेवल बहुत ऊपर है, लोग थोड़ा आपको कॉल करने में झिझक रहे हैं। अब आपका रोल शुरू होता है कि आप उनको कॉल बैक करिए। तो मुझे बात समझ में आई, तो फिर मैंने उस चीज़ को मैनेज किया। तो ऐसा ही उन सब लोगों के साथ आता है कि जब लोग एक सफलता पे पहुंच जाते हैं, फिर वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करें, कैसे उसको मैनेज करें, ये एक प्लानिंग का पार्ट है और कुछ नहीं। एक और प्रश्न है, ध्यान करते हुए मन कभी शांत नहीं होता है, विभिन्न विचार आते रहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये देखिए, मेरी मेडिटेशन का एक पूरा एक प्रोसीजर होता है। जैसा कि डॉक्टर राठौर जी ने बोला कि मेडिटेशन एक टूल की तरह है, उसको टूल की तरह हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। टूल है तो सीखती है, हम सीधा ये कहेंगे कि बॉडी हमारी एक मशीन है और उस मशीन को हमें कैसे चार्ज करना है, उसके लिए प्रोसीजर रहता है। तो मेडिटेशन के भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी जो बात कर रहे हैं ना कि 4 दिन जो लोग योग सीख लेते हैं फिर वो करने लग जाते हैं, तो थोड़ी सी लोगों के बीच में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बातों का हो चुका है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए जो विधियां हैं उनको फॉलो करें। और अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलता, मैं जिन्होंने प्रश्न किया मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपको मेडिटेशन करना सिखाए, तो जस्ट मैं उनको ये कहूँगी कि जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप शांत जगह पर बैठ जाइए। शांत जगह पे बैठिए, जो अच्छा लग रहा है उसको देखिए, सुनिए, महसूस करिए। मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए तो ऋषि बन गए। मेडिटेशन बॉडी की हर वो कंडीशन है, वो चाहे चलते भी हो सकती है, बैठते भी, सोते भी, किसी भी समय हो सकती है। आप मेडिटेट हो सकते हो। तो वो जो अवस्था, जो धारणा, ध्यान, समाधि जो कहते हैं ना, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं और वो उस काम में आप डूब गए, वो कहते हैं ना अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो तो अपने काम में डूब गया, वो भी समाधि की एक अवस्था होती है। तो कहीं से कंफ्यूज मत होइए कि वो समाधि मीन्स वो मतलब ध्यान मीन्स वो हम पोस्चर बना के बैठ गए तो ध्यान हो गया। आपका मन कहीं कंसंट्रेट हो जा रहा है, किसी चीज में लग जा रहा है, आप उसमें आनंद ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी धारणा और ध्यान की ही अवस्था है। तो इंजॉय करिए, और जब आप इंजॉय करेंगे तो वो आपकी समाधि कहलाती है। बहुत सुंदर। डॉक्टर राठौर, आप सुन पा रहे हैं क्या? राठौर जी के लिए दो क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम उनका साउंड नहीं आ रहा था। उनका साउंड नहीं आ रहा है। हाँ। एक और क्वेश्चन है, आप भी ले सकती हैं मैम अगर। इज देयर एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मेंटल इलनेस बीइंग ट्रीटेड बाय योगा? मेंटल इलनेस ट्रीट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल वो जानना चाह रहे हैं, मेंटल इलनेस बीइंग ट्रीटेड बाय योगा, योगा के द्वारा ट्रीट किया गया है, ऐसे कोई? इसके लिए एग्जाम्पल अगर देखना है तो और मैं कहीं और नहीं बता सकती, जिनको मैंने देखा है वो उनका बता सकती हूँ। तो एसवीएस यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है, उसमें बहुत सारे स्टाफ के जो लोग हैं, वो एक टाइम में, आज से 25 ईयर्स बैक की मैं बता रही हूँ, उस समय पर वो मेंटल डिस्टर्ब होकर वो वहाँ पर एडमिट हुए थे। उसमें से एक जो मेस की इंचार्ज है आज के टाइम में, वो उस टाइम पर किसी को भी पत्थर मार देती थी, कपड़े फाड़ देती थी, वो उसको जो हाथ में पड़ता था वो मारती थी। लेकिन आज के टाइम पर वो वहाँ की मैस इंचार्ज है। एक और लेडी है जिसको मैंने देखा, वो आज के टाइम में बहुत अच्छी भजन गायिका है, बहुत अच्छी भजन गायिका, जो एक अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठ के
वो अपना भजन गा सकती है। एक और उसमें ऐसी और है जो एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी। वो काफ़ी टाइम थोड़ा अलग हट के उनका प्रॉब्लम था। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया पहले और उसके बाद आज वो एक सेंटर में इंस्ट्रक्टर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये तो ऐसे हैं जो बहुत समय से मेरे बराबर टच में रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि हर हालत में कि ऐसे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। This is a real life example indeed. डॉक्टर राठौर के लिए 2 क्वेश्चंस थे, वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं उनको भेज दूंगी और उनसे मैं फिर हम लोग जो हमारे व्यूअर हैं उनको हम लोग ईमेल से भेज सकते हैं। इज ही ऑनलाइन? कैन यू हियर अस? अच्छा, राठौर आपके लिए क्वेश्चन था, कैन योगा इम्प्रूव स्लीप पैटर्न्स? हाँ डॉक्टर राठौर, या देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ व्यूअर दैट कैन योगा इम्प्रूव स्लीप पैटर्न्स? Yoga improves sleep pattern. Sleep, हाँ. Sleep. Sleep, need. Yes, 100%. 100%. आपका इसमें सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, आ रहा है, सुनाई दे रहा है। बताइए सर। Well, yes, the question is the yoga, can yoga improve the sleep pattern? Yes, the 100% we have to see the a lot of research study whenever the person having a problem with insomnia. So if they are performing the yoga continuously, so definitely sleep pattern is improved. Particular, hello? Yeah, we can hear you. Yes, can sound is it? Yeah, सुनाई दे रहा है. We can hear you, sir. Continue. Go ahead. So 100% yoga improves the sleep quality. Particular, get a sleep effect is there. Particular, while we are doing the Brahmi pranayama, or the pranayama which are very calming effect on the mind. So definitely getting sleep. But there is some problem while we are doing some yoga like which are very insomnia. So we have to not to do some practice, particular like checking up phone. So all the things our main trend, particular whenever we have a problem with the system sleep. So there is two things. There one system and body is called the autonomic nervous system. So we should not do the yoga practice which enhances the activity of the sympathetic nervous system. So we have to do the yoga practice which enhances our parasympathetic nervous system. I will give very one simple example to you. Let's say we talk about the Nada Dhyan meditation. So when we are doing the meditation, there is no pitch. Suppose we are taking the all, so it activate our sympathetic nervous system. As we are doing so the pitch is very, very important to you. So it is very important to you to do all the yoga practice which enhances the parasympathetic nervous system, and definitely there will also. Thank you, sir. So you have some audible network issue, I think, so we could not hear you properly. Thank you for the answering to the queries. So now we will wind up the discussion, panel discussion, and on behalf of Vigyan Prasad and on my own behalf, I extend a heartfelt gratitude to the panelists in presenting your views and enlightening our viewers on the importance of yoga and mental health, mental well-being. My sincere thanks to all the viewers, participants for attending the discussion. Hope you have liked the discussion, and we look forward to your active participation in all our future programs. We'll be keep informing you, keep you posted about our future programs. Thank you for joining us. Thank you. So thank you, ma'am. Thank you, Rathore ji.